नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद कूटनीतिक मोर्चे पे बढ़त पाने के लिए भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। लेकिन इस बीच हमारे देश में राजनीति चल रही है। शशि थरूर के बयानों को लेकर दिल्ली में या कहीं देश में कांग्रेस में हलचल तेज हो चली है। कभी उदित राज बयान देते हैं, कभी पवन खेड़ा आकर ट्वीट करते हैं, कभी जयराम रमेश बात रखते हैं। साफ है कि जिस तरीके से शशि थरूर विदेश में जाकर बात रख रहे हैं उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं असहज हुई है और उदित राज ने तो शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक कह दिया है और ऐसा लगता है पार्टी के बड़े नेताओं में इसको लेकर सहमति है। तभी तो जयराम रमेश जैसा जो वरिष्ठ लीडर है वो उदित राज के ट्वीट को रीट्वीट करता है। लेकिन यह मामला शशि थरूर तक ही नहीं था। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह कैबिनेट में देश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने आज एक ऐसी बात कही जो कांग्रेस के स्टैंड से इतर दर्शाती है। धारा 370 के हटने को लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद बड़ी मुसीबत का खात्मा हुआ है। एक चुनी हुई सरकार वहां पर अच्छे तरीके से काम कर रही है, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और साथ ही जो एक विशेष दर्जा था जो अलगाव की भावना पैदा करता था वो खत्म हुई है। यानी धारा 370 के समाप्ति को लेकर उन्होंने मौजूदा सरकार की तारीफ की है। ये कांग्रेस के लिए एक असहज स्थिति हो सकती है कि शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद इस तरह की बात रख रहे हैं और ये परेशानी का सबब क्यों बनी है, क्यों आखिर ऐसी बातें हो रही हैं। और यहां दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के नेता जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस इस स्टैंड पे कुछ अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो दो बयान, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद के वो बयान जिनको लेकर सबसे ज्यादा सियासत या ये कह लें कांग्रेस में जो हलचल है, जो परेशानी है, जो बेचैनी है, वो बड़ी। सुनिए। What has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters. Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very unfortunate, and it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did. For 4 days, and when we tried to give a message to Pakistan, please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message.
प्रॉस्पेरिटी कश्मीर में, यानी कश्मीर में खुशहाली आई 370 हटने के बाद, ये बात कह रहे हैं सलमान खुर्शीद। इससे पहले आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने किसी भी मंच पर 370 हटाने को लेकर ऐसी बात नहीं की है। अब जब ऐसी बातें होने लगी तो उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव लड़ा था दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर, इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा उसको एक बार आप सुनिए। थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती। तो आपने जब ये बयान सुना, मोदी की चमचागिरी, शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता, शशि थरूर अगर विदेश में जाकर भारतीय सेना के साहस और शौर्य की बात कर रहे हैं, और चलिए उन्होंने बाद में कहा कि मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा था, युद्ध में यकीनन हमने बॉर्डर क्रॉस किया है, लेकिन ऐसे मौकों पर जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तो हमने बॉर्डर क्रॉस करके कार्रवाई की। इस बात पर उन्होंने रखी, सफाई भी दी, लेकिन मोदी की चमचागिरी जैसे शब्द, और उदित राज कह रहे हैं इतना नहीं है, क्योंकि उसे रिट्वीट कर रहे हैं बड़े नेता, एक दो बड़े नेता, तो फिर ऐसा लगता है कि उदित राज से या तो ये कहलवाया जा रहा है। अब जब कांग्रेस से ऐसे रिएक्शन आएंगे कांग्रेस नेताओं पर ही, तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुनिए। शशि थरूर जी, कांग्रेस के सांसद, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, क्योंकि शशि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं, तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि शशि थरूर जी ने बताया और राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ, राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि किस प्रकार से भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान की कुटाई की, और वो भी पहली बार इस प्रकार की कुटाई एक न्यूक्लियर पावर देश की हुई जिसमें 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए। तो क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया, तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेगी कि हम देश और सेना के साथ है, और देश और सेना की बुराई करना, अपमान करना, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाना, छुटपुट कहना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आज कांग्रेस पार्टी जो है अपना कर्तव्य समझती है, वो डीजी आईएसपीआर की तरह बोल रही है। तो ये आपने सुना शहजाद पूनावाला किस तरीके से कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, और जब विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया तो उसके बाद प्रयास किया गया कि पटाक्षेप हो जाए। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म। तो ये आपने सुनी बात, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं, जो शशि थरूर कह रहे हैं, पीछे हमने मनीष तिवारी को भी देखा, उन्होंने इसे राष्ट्र की पुकार बताया। आखिर चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन लाल गुप्ता जी प्रांतीय अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के,
वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरे विषय की गहराइयों को, उसकी डेप्थ में जाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, ये जो डेलीगेशन गया हुआ है वहां तक ठीक है, लेकिन विदेश मंत्री रहे हुए शख्स, सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट लॉयर सलमान खुर्शीद जब ये कह रहे हैं कि 370 हटने से एक मुसीबत का अंत हुआ है, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, अलगाववाद की भावना समाप्त हुई है, कांग्रेस के बीच में विचारों का विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए गोयल जी, जो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है वो विदेशी धरती पर उस डेलीगेशन के एक जिम्मेदार लीडर होने के नाते दिया है और इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए। कश्मीर की खुशहाली तो उसी दिन शुरू हो गई जब कश्मीर का विलय भारतीय संघ में हो गया था 22/48 को। तो उस तभी से लगातार चुनाव और धारा 370 का जो सबसेक्शन है बी या सी, उसमें ये प्रावधान था कि ये टेम्परेरी है धारा 370 और जब परिस्थिति वश इसको हटाया जा सकता है। तो कोई नई बात उसमें भी नहीं है, कोई सरकार ने या मोदी जी ने आने के बाद उसे नया स्वरूप दिया हो। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था, समय और परिस्थिति बस इस बात को किया है। और सलमान खुर्शीद ने विदेश में जाकर हमारे राष्ट्र को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना से कोई बात कही है तो उसका अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। मोदी जी जैसा तो नहीं किया जो जापान में कहा, सियोल में कहा, सियोल में कहा, हाँ भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हमने जन्म ले लिया। क्या लोग कहते थे, अरे ये तो बड़ी बदनसीबी हो गई। वहां मोदी अब की बार ट्रंप सरकार में न्यूयॉर्क में वो कह रहे, तो यदि विदेशी धरती पे जाके वो भारतवर्ष की बात करते हैं, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और एकता की बात करते हैं, कश्मीर की खुशहाली की बात करते हैं, तो वे एक अनुभवी और परिपक्व नेता हैं। उसको उसी नजरिए से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसकी बाल की आवश्यकता नहीं है। और विदेशी धरती पर भारतवर्ष की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी और राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर हमेशा बात होगी। और ये बात हुई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, सबने इस बात का अनुसरण किया है। और हम जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है जिसमें कहा गया है कि इस आतंकवाद के आक्रमण के खिलाफ जो भी सरकार कार्रवाई करेगी, पूरा समर्थन विपक्षी दल का, इंडिया गठबंधन का पूरा रहेगा या इंडिया गठबंधन का रहेगा, तो हम उससे उसी के अनुसार उसी परंपरा का पालन। ठीक है। 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पी चिदम्बरम साहब, जो यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे, अभिषेक मनु सिंघवी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमत हैं जिसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 370 को जिस तरह हटाया गया वो संविधान सम्मत था। सीडब्ल्यूसी ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 370 तब तक लागू रहना चाहिए था जब तक उसे संविधान के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। अब जब सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि बड़ी मुसीबत खत्म हुई, तो क्या हम इतने समय से मुसीबत को साथ लेकर चल रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि 370 की धारा जो उपधारा है, बी या सी है, अभी इस पर ध्यान नहीं है मुझे, उसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि टेम्परेरीली है और जब चाहे तब राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं और उनका पूरी तरह से विशेष दर्जा खत्म हो जाएगा। तो विलय तो पूर्ण रूप से महाराजा हरि सिंह के समय हो ही गया था। वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में जिसके अंतर्गत वो साइन करके पूरा कश्मीर का भारत में विलय किया था। इसलिए वो विवाद का विषय अब नहीं है। धारा 370 के विशेष प्रावधान के अंतर्गत अब इस बात का पटक्षेप हो गया है। अब ये डिबेटेबल पॉइंट रहा ही नहीं है। नहीं, आप
प्रताप भानु जी, आप कह रहे हैं डिबेट का पॉइंट नहीं रहा। जो जो पॉइंट सलमान खुर्शीद रख रहे हैं, ऐसा पॉइंट तो कांग्रेस ने कभी रखा नहीं ना। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि हाँ ये ठीक हुआ। कब नहीं, कहा जब बताएं आप। कांग्रेस ने विरोध में नहीं किया। आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कांग्रेस को यदि विश्वास में लेकर करते जी, अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। शशि थरूर जो कह रहे हैं, उसे उदित राज मोदी की चमचागिरी और बीजेपी के सुपर प्रवक्ता, उदित राज कह दे तो चलिए कह दिया, हम कह सकते हैं, वो कह देते हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसे जयराम रमेश रीट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब पार्टी में शशि थरूर को लेकर एक अनकंफर्टेबल स्थिति है, असहज स्थिति है, और इस तरह की टिप्पणी करके कि उन्हें मोदी की चमचागिरी वो कर रहे हैं, जो बीजेपी नहीं कर पा रही वो शशि थरूर कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय मसलों में विशेषज्ञ आदमी है और उस डेलीगेशन में उन्होंने जवाबदारी बड़ी महत्वपूर्ण निभाई है। और वहां पर चाहे अमेरिका में हो, चाहे नीचे पनामा में हो, चाहे वो गयाना में हो, चाहे अन्य राष्ट्र में गए हो, उनने भारत के पक्ष को ही रखा है। और जब वो सरकारी डेलीगेशन में जाएंगे तो उसमें इंडिविजुअल विचार थोड़ी होते हैं, उसमें तो राष्ट्र का जो नजरिया है वही राष्ट्रीय नजरिया खुले रूप से बताया जाता है। और हमारा कांग्रेस का वही स्टैंड है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने रेजोल्यूशन में लिया है, उसमें कोई उसी के अंतर्गत दिया है। और वहां पर भी अमेरिका में जाकर या पनामा में जाकर या किसी और कंट्री में जाकर कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेसी सांसद के रूप में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में ही तो उन्होंने काम किया है। तो आप असहमत है ना? इसका मतलब जो उदित राज कह रहे हैं, जो दिल्ली में बाकी लोग कह रहे हैं, चमचागिरी से जोड़ना ठीक नहीं है ना इसे? उदित राज से हमारी डिबेट का कोई कारण नहीं है। उसका उल्लेख या उसका स्पष्टीकरण आप उदित राज जी से ही मांगिए। शशि थरूर की जो भूमिका है, राष्ट्रीय नजरिए से जिन जिन देशों में वो गए हैं, मैंने पूरे उनके स्पीच सुने। उन्होंने यूरोप में क्या कहा, अमेरिका में क्या कहा, पनामा में क्या कहा, ये सब बातें सामने आई हैं और बेहतरीन तरीके से उन्होंने हर पक्ष को रखा है। और उन्होंने खुले रूप से जो वर्णन हुआ, वो जहाँ कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा था, उसमें भी उन्होंने आज सफाई दे दी है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इस आतंकवाद के खिलाफ जो एक स्ट्राइक हुई है, जो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसी के संदर्भ में उन्होंने कही थी बात। युद्ध का उसमें कोई जिक्र नहीं किया था। ठीक, एक बार प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं, फिर आगे मेहमानों के पास बढ़ेंगे। प्रेम कुमार जी, जो उदित राज ने बयान दिया, फिर उस बयान को जयराम रमेश ने रीट्वीट किया और एक तंज कसते हुए कविता भी उन्होंने डाली। क्या कांग्रेस के बीच में मैं ये कहूं, क्या G23 का पुनरुत्थान के संकेत मिल रहे हैं क्या? जी, देखिए, मौके होते हैं राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर भी स्कोर करने के, और राजनेता करते हैं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता के रूप में रहे हैं जो हमेशा लगता है कि कब वो पार्टी में रहेंगे और कब चले जाएंगे, इस तरह की स्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ कांग्रेस में रहती हैं। क्या बीजेपी में आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी आज क्या क्या कह रहे हैं, वो भी तो सांसद है ना बीजेपी के। इससे पहले बीजेपी सब सांसद नहीं है, वो सांसद रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, बीजेपी के रहे। और आप इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी सुनते थे जब 2014 से 19 के बीच में, जब मोदी जी से प्रसन्नता और अपनी असहमति जताया करते थे। मुरली मनोहर जोशी जी से कोई पूछता था तो कितना नंबर देंगे, तो बोलते हैं कि इसने कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर क्या देंगे। तो इस तरह की भी बातें होती। एक बड़ी संख्या में नेता, अरुण शौरी हुए, तमाम लोग बोला करते। लेकिन फर्क क्या है कि उनके बोलने को लेकर के बीजेपी में कोई रीट्वीट या ट्वीट नहीं करता था, सहमत या असहमत नहीं होता था, चुप्पा लगा जाता था। और यहां है कि शशि थरूर क्या बोल रहे हैं उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं कांग्रेस से आ रही। तो शशि थरूर जितना कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं और
ऐसा नहीं है कि तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए डैमेज कर रहे हैं, इस पे मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो डैमेज कर रहे हैं उससे ज्यादा ये रिएक्शन दे करके कांग्रेस उसको डैमेज कर रही। कांग्रेस के ही बड़े नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो दबी जुबान में कह रहे थे कि शशि थरूर को इतना मीडिया प्रेमी बनाने वाला कौन है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेताओं ने शशि थरूर पर इतनी टिप्पणियां कर दी कि शशि थरूर पर सबका ध्यान है, क्या बोल रहे हैं उस पर पूरी मीडिया लगी हुई है, बीजेपी तो जाहिर बात है लगेगी। तो ये स्थिति है। और सच क्या है कि शशि थरूर के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया, क्या वो सक्सेसफुल है? कोलंबिया गया, देखिए कोलंबिया ने पाकिस्तान में मारे गए भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों के लिए दुख प्रकट कर दिया कोलंबिया ने। तो ये पूरा पैनल फेल्योर है, भारत की बात रख नहीं पा रहा है, तो वहां तो बात हो नहीं पा रही है, वहां उल्टा हो रहा है। और बात हो रही कि शशि थरूर ने क्या बोल दिया, शशि थरूर ने अपनी किताब में जो लिखा है उसका उल्टा वो बोल रहे हैं, वो खुद का अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। तो हम शशि थरूर की बातों पर बात करें कि उनका पैनल जो विदेश में गया है और जिस मकसद से गया है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी चर्चा करें। भाई उनके फॉरेन में रहते, अमेरिका में रहते हुए अदालत में, अमेरिका की सरकार लिख करके बता रही है, अदालत में कोई भी सरकार झूठ नहीं बोलती है, ऐसा पूरी दुनिया में मान्यता है। हमारी भी सरकार अपनी अदालत में लिख करके झूठ नहीं बोलती है, वहां अदालत में लिख करके वो बोल रही है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है उसी पॉलिसी के तहत रुकवाया, ट्रेड पॉलिसी के तहत। तो ये कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है समय के साथ साथ साबित होगा, लेकिन आज की तारीख में जरूर ये राजनीति हो रही है कि ऐसा लग रहा भारत पाकिस्तान में लड़ाई नहीं चल रही है, भारत के भीतर सत्ता और विपक्ष में युद्ध चल रहा हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चल रही है जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी। चौहान साहब, दो प्रश्न थे यहाँ पर कि शशि थरूर जो कह रहे हैं उसे चमचागिरी शब्द इस्तेमाल किया गया उदित राज के द्वारा, और जो उदित राज ने कहा चलिए उसे गंभीरता से ना भी लें, तो जयराम रमेश ने बकायदा रीट्वीट किया उनकी बात को। चलिए वहां से हुआ, तो फिर आज जिस तरीके से सलमान खुर्शीद सीनियर लीडर, उन्होंने 370 को मुसीबत बताया कि मुसीबत हट गई, इसे आप क्या इस तरीके से देखेंगे कि विदेश में जाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वो पक्ष रख रहे हैं जोरदार तरीके से भारत का, इसे इसी स्वरूप में देखना चाहिए या फिर कांग्रेस के बीच में विचारों का विभाजन है इस तौर पे देखना चाहिए? देखिए, संकट के समय देश के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खड़े होना, ये भारत में कमोबेश आजादी के बाद एक परंपरा रही है। और जब देश के साथ उठ खड़े होने की बात होती है, देश का पक्ष रखने की बात होती है, तो निश्चित तौर पर सत्य कहना होता है, सही चीजों को कहना होता है। और दलगत राजनीति से ऊपर उठने का मतलब भी यही होता है कि मेरे दल की सोच कुछ भिन्न हो सकती है, मैं राजनीतिक रूप से अपने दल की लाइन उसको छोटा मानता हूं। देश की का स्वाभिमान, देश की अखंडता और विश्व के सामने देश की छवि और देश का पक्ष मैं उसको सबसे बड़ा मानता हूं। ये मानकर भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, भारतीय जनता पार्टी, जब हम जनसंघ होते थे तब भारतीय जनसंघ के नेता और अन्य दलों के नेता भी कमोबेश ये काम करते रहे हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तनाव खड़ा हुआ, संकट का समय आया, तो आपने देखा कि स्वाभाविक रूप से जो होना चाहिए था उस परंपरा के अनुरूप देश की सेना, उसके साथ खड़े होना, एक तरफ देश की अपेक्षा थी विपक्ष से, उनको खड़े ही होना चाहिए, परंपरा के अनुसार वो खड़े होंगे ही, ये उम्मीद उनसे सब लगाए हुए थे। इस दबाव में कह लीजिए, परंपराओं के निर्वहन के लिए कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी और उसके अधिकांश साथी कम से कम सार्वजनिक रूप से उन्होंने देश के सामने आकर कहा, हां हम देश की सरकार के साथ हैं, हां हम देश की सेना के साथ हैं, हां जी हम देश के साथ हैं।
उसी क्रम में पहलगाम के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का पक्ष रखने के लिए सरकार के इनिशिएटिव पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वो दुनिया में गए हुए हैं, आज भी वो अपना काम कर रहे हैं। देश का पक्ष अच्छे से रखा जा रहा है, उसमें कुछ कमी रह गई होगी वो भी कभी ना कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जैसे पहलगाम के बाद देश ने दमदार उत्तर दिया, ये देश भी मानता है, दुनिया भी मानती है। हमारी सेनाओं ने बेहतरीन काम किया, ये बाहर भीतर सब मान रहे हैं। उसी तरह हमारे देश के प्रतिनिधिमंडलों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, चाहे वो थरूर साहब हैं, सलमान खुर्शीद हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं के अनुरूप सर्वोत्तम काम कर रहे हैं। अब ऐसे समय में देश ये तो जानना चाहेगा, वरुण भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस के कुछ नेताओं की, कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े चेहरों की, कांग्रेस के किसी जयराम रमेश की, कि वो देश की जो छवि, देश के पक्ष का जो प्रस्तुतिकरण दुनिया के सामने हो रहा है, उस पर सवाल खड़ा करें। ये कांग्रेस के भीतर की घबराहट है, ये कांग्रेस के भीतर का दोगलापन भी, मैं इसको कहूं, थोड़ा तीखा शब्द हो सकता है, परंतु मुझे लगता है ये दोगलेपन का जीता जागता प्रमाण है। कांग्रेस के अपने बेटे वो दुनिया के सामने जाकर के देश के बारे में तथ्य रख रहे हैं, और यहां कांग्रेस के ही कुछ बेटे अपने ही उन भाइयों का मजाक और भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। ये भाइयों का मजाक नहीं है, ये अपने सांसदों का मजाक नहीं उड़ा रहे, केवल ये भारत माता की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और पीठ में छुरा घोंपना तो छिपकर घोंपना होता है, ये तो अपनी मां, मातृभूमि को सामने से भाला मार रहे हैं। ये निर्लज्जता है, मैं इसको मानता हूं, और बेचैनी की इंतहा है। थोड़ा इंतजार कर लो, कर लेना सरकार की आलोचना। कौन कहता है सरकारों से गलतियां नहीं होती? छोटी मोटी चूक कभी सेना से भी हो सकती है, लेकिन वो निर्लज्ज लोग हैं जो संकट के समय कभी सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी ये कहते हैं कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई परिंदा भी नहीं मरा, कभी कहते हैं सेना का अध्यक्ष वो उसको गली के गुंडे से तुलना कर जाते हैं, कभी रफाल का मजाक उड़ाते हैं, और कभी देश ने जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया उसके बारे में हल्की बातें करते हैं। रही बात अनुच्छेद 370, एक सवाल इसमें मैं ऐड कर देता हूं, फिर आऊंगा आपके, मतलब और एक सवाल ये कि कांग्रेस पिछले 2 दिन से ये बता रही है कि उसने भी कई सारी स्ट्राइक की है पाकिस्तान में। 6 या 7 का जिक्र किया जा रहा है 2008 से 2014 के बीच में, लेकिन उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए उसका ढोल नहीं पीटा। बहुत विचित्र लोग हैं। देश जब दुश्मन को उत्तर देता है, उसकी चर्चा करना, उससे देश के नागरिकों का, देश के सैनिकों का, आहतों पीड़ितों का हौसला दुरुस्त होता है, उनका मस्तक ऊंचा होता है, उनके जख्मों पर मरहम लगता है। जब भारत के गौरवपूर्ण कार्य, पराक्रमपूर्ण ऑपरेशन की चर्चा देश में हो रही है, तो ये कांग्रेस कहती है ये राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। अगर यही आरोप लगाना हो तो इन पर भी ये आरोप लगेगा। मैं इस आरोप को एकदम निराधार मानता हूं, निर्लज्जतापूर्ण मानता हूं, परंतु 71 के युद्ध के बाद अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव एडवांस करे थे, निर्धारित समय से पहले किए थे, तो क्या वो राजनीतिक रोटियां सेक रही थी सेना की वर्दी पर, सेना के संग्राम पर? ये छोटी सोच है। मैं इसमें एक बात और देखता हूं, अगर हमने तो कहीं राजनीति की बात की नहीं, हमने तो ये कहा नहीं कि चुनाव आ गया जी, कल चुनाव है, चलिए हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम का उत्तर दिया आतंकियों के ठिकाने, सुभान अल्लाह से लेके और न जाने कौन कौन से ध्वस्त कर दिए ब्रह्मोस से। कौन है जो चुनाव का जिक्र कर रहा है? चुनाव का जिक्र कर रही है कांग्रेस, कौन चुनाव का जिक्र कर रहे हैं? प्रतिपक्षी लोग। तो चुनावी खलबली, चुनावी जो भावनाएं हैं, तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, या चुनाव में संभावित परास्त होने का भय, वो कांग्रेस के भीतर ऐसे कुलमुला रहा है कि ये देश के विरुद्ध बोलने से भी तनिक शर्मा नहीं रहे। ये खुद को एक्सपोज होते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन
खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तनिक नियंत्रण करना था, कुछ देर सहन करना था। अनुच्छेद 370 पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं वरुण भाई, अगर आप कहें तो अनुच्छेद 370 ठीक कहा सलमान खुर्शीद साहब ने। अनुच्छेद 370 भारत के साथ, भारत के संविधान के साथ जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर के दलितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ एक धोखा था। कॉन्स्टिट्यूशन में वो व्यवस्था अगर व्यवस्था में की गई थी, कोई ये कहे तो साफ तौर पर लिखा गया था टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते, मुस्लिम तुष्टीकरण के इनके जो भद्दे डिजाइन लंबे समय तक चलते रहे, उसके कारण 370 जो कि अस्थाई प्रावधान था उसको स्थायी बनाकर रखा। अच्छा लगा जब आज एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि उसके कारण, हम भी यही कहते थे ना लगातार वरुण भाई, कि अनुच्छेद 370 के कारण हरियाणा का नागरिक और जम्मू कश्मीर का बासिंदा वो अलग अलग दिखाई देते हैं या एक दूसरे को देखते हैं। यही बात तो सलमान खुर्शीद ने कही। सच कहना, ये कांग्रेस को अगर हजम नहीं हो रहा तो बीमारी कांग्रेस की सोच में है, समस्या कांग्रेस के दृष्टिकोण में है। गुप्ता जी के पास चल रहे, एक बार उनका विचार जाने, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं। गुप्ता जी, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में हैं, आपने चुनाव लड़ा, सरकार बनी आपकी, सलमान खुर्शीद जैसे सीनियर लीडर जो विदेश मंत्री रहे हैं वो कह रहे हैं मुसीबत थी, मुसीबत खत्म हुई है, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, 65% लोगों ने वोटिंग करके नई सरकार को चुना है, अलगाववाद की भावना खत्म हुई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सलमान खुर्शीद के इस बयान से? देखिए साहब, बड़े दुख की बात है कि मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है। हमारी फौजों ने जिन पे हमें गर्व है, उन्होंने जो काम किया, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो आर्मी थी, चाहे नेवी थी, पूरी दुनिया में उनका डंका बजा। लेकिन पाकिस्तान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। इसलिए क्योंकि पूरा देश एकजुट और एक मुट्ठ होके प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा हो गया, नेशन मजबूत हुआ। लेकिन उस वक्त ये सोचा गया कि जो पाकिस्तान झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। तो ये फैसला गवर्नमेंट ने लिया कि साहब, हमें मुल्क में हम पाकिस्तान का जो झूठ है वो उनके सामने रखें। इसलिए हमने डेलीगेशन जो है बाहर पूरी दुनिया के अंदर भेजे, 7 हमारे डेलीगेशन बने जी। लेकिन उन डेलीगेशंस को जाने से पहले जो ब्रीफिंग की गई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, मैं समझता हूं कि उन डेलीगेटों को उसके मुताबिक ही बोलना चाहिए था वहां पे। लेकिन क्या 370 की ब्रीफिंग फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने इनको दी थी? क्या इनको कहा गया था कि आप डिस्कशन वहां पे कीजिए कि 370 की वजह से मुसीबत थी या नहीं थी? 370 एक जम्मू कश्मीर के लोगों की आन बान और शान है, उसको एब्रोगेट किया गया। माना कि इन्होंने क्या कहा, लेकिन हमारा 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराज ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, उस वक्त 3 शर्तों पे मिलाया था। और उस वक्त ये बात, ये कह रहे हैं सुलेमान साहब कि साहब मुसीबतें थी। क्या आप समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर मुसीबतों में जूझ रहा था? क्या वहां इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या वहां कोई गवर्नमेंट थी नहीं? क्या वहां उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का राज चलता रहा? मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब को 370 के चर्चा के लिए हमने बाहर नहीं भेजा था। उनको ब्रीफिंग जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने दी थी, उनको वही बोलनी चाहिए थी। उन्होंने ये बात बोल के एक नई बैच शुरू कर दी, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर
बल्कि पूरी दुनिया में, और इस इशू को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया। मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं किया उन्होंने। जहां तक 65% पोलिंग हुई और आपको चुना लोगों ने, ये भी तो 370 के बाद ही हुआ ना गुप्ता जी? बोल रहे थे यहाँ पे, वो क्या कह रहे थे, हमने मोदी जी के पीछे खड़े होके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल एक बिना मतलब साइन किए हुआ चेक, कोरा चेक दिया कि साहब आप जो करेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, जिस ढंग से उन्होंने यहाँ पे सियासत का काम किया है, ये नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए शोभा नहीं दे रहा है। गुप्ता जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं 65% लोगों ने वोट डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई, चुना, ये भी तो एक फैक्ट है ना? नहीं, ये लोगों ने साबित किया। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए वो 10 साल के बाद हुए। 10 सालों में कितनी मुसीबतों से ये जूझ रहा था जम्मू कश्मीर। ये आप जम्मू कश्मीर में आते तो पता चलता। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने तन मन धन से इस इलेक्शन में, जो इलेक्शन हुआ हमारा पिछला, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर ताकत से उनको जिता के लाया। और आज इन्होंने हमारे साथ क्या किया, इन्होंने कहा था कि हम स्टेट खुद फौरी तौर पे हम इलेक्शन के बाद देंगे। 65 से 70% लोगों ने अपना वोट का इस्तेमाल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ हुकूमत में लाया। आज यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है। क्या उस पॉपुलर गवर्नमेंट का जो राइट होता है डेमोक्रेटिक, क्या वो चलने दे रहे हैं? क्या हमें स्टेटहुड इन्होंने वापस नहीं देना चाहिए था? इनको स्टेटहुड वापस देना चाहिए था ताकि हमारी गवर्नमेंट चलती। और लोगों ने जो डेमोक्रेटिकली अपना राइट इस्तेमाल किया है, उसका इस्तेमाल अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी हमारी जम्मू कश्मीर में फिर हमने रूटीन पे लाई है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी के पास चल रहा हूं मैं। 2 बातें इस पूरी चर्चा से अभी तक आई हैं। एक तो ये कि वो विषय इतने बड़े थे नहीं जिन्हें बना दिया गया। कांग्रेस के नेताओं को भी दिल्ली में बैठ के आदत है शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर, और फिर वो विषय बन गया शशि थरूर। दूसरा, आपके सहयोगी जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि बहुत गलत बयान दिया सलमान खुर्शीद ने, ब्रीफिंग से हट के उन्होंने बात की, ब्रीफिंग में तो नहीं कहा गया होगा 370 की बात करिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही उनके जो है उनको तो बड़ी तकलीफ पहुंचाने वाली है। देखिए वरुण जी, ऐसा है, जब विदेशी धरती पे बात होगी तो वो राजनीति से ऊपर उठकर होगी, दलगत राजनीति से भारतवर्ष की बात होगी। और गुप्ता जी की उस बात से मैं सहमत हूं कि उन्हें विषयांतर नहीं करना चाहिए था। जो ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय ने उनको दी थी और जो विषय, जिस विषय पर फोकस करने के लिए ये डेलीगेशन गए हैं, उस विषय पर ही उन्हें केंद्रित रहना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। और बाहर के पत्रकार या विदेशी कुछ लोग ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के होते हैं जिन्हें कश्मीर को उलझाने में, कश्मीर में समस्या पैदा करने में, कहीं और दूसरों का पक्ष करने में उन्हें दिलचस्पी रहती है। अब वो हमारी तरफ से चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया है, पूर्ण विलय भारतवर्ष में है कश्मीर का। अब सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया सर्वसम्मति से, कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो वापस हिंदुस्तान को दिया जाए और वो पाकिस्तान से खाली कराया जाए। इसी मुद्दे को लेकर सभी दल एकजुट होकर करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। जहां तक ये छोटे-छोटे सवालों, तो इन पर इतना गहन चिंतन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। सबसे अहम सवाल तो यह है कि जो पहलगांव में घटना हुई थी 22 अप्रैल को, उसके आतंकी आज तक क्यों नहीं पकड़ा है या वो निशाने पर क्यों नहीं आए। दूसरी घटना यह है कि हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर उन लोगों की, महिलाओं की रक्षा के लिए और उनके लिए समर्पित होकर किया गया है, तो उनके सिंदूर की रक्षा कहां हुई या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारत सरकार ने करी। तीसरी, जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका राजनीतिकरण तो होना ही नहीं चाहिए। यह ऑपरेशन मोदी बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय मिलिट्री का एक दिया हुआ नाम है जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान के आतंकी जो थे ठिकाने वो ध्वस्त कर दिए, हवाई अड्डों को चकनाचूर कर दिया। और जो तैयारियां, हमारे चौहान साहब ने कहा कि वो बड़े स्वदेशी प्रेमी हैं, बड़े बात करते हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवाद की बुनियाद तो कांग्रेस ने रखी।
कांग्रेस ने आत्मनिर्भरता की बुनियाद रखी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 1971 में बता दिए, पूरी दुनिया के इतिहास में और भूगोल को बदल के रख दिया। ये काम किया था इंदिरा गांधी ने। अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजेंगे, इंदिरा जी ने कहा अपनी खुद को देखो, आप हमारी तरफ मत देखो, और उसकी परवाह नहीं करी किसी भी तरह से, और उस 7वें बेड़े का घेराव करवा दिया। रशिया की जो न्यूक्लियर पनडुब्बियां गई थी, खड़े के खड़े रह गए और नए देश का, बांग्लादेश का उदय हो गया। ये काम किया था इंदिरा गांधी ने, और इन्हें ट्रंप के दबाव में, व्यापारी के दबाव में, व्यवसाय के दबाव में ये सीज फायर कर दिया। इस सरकार को और मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि सीज फायर क्यों किया, जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी। विध्वंस पाकिस्तान का कर दिया था, पराक्रम हम देख रहे थे, स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस ने उनको तबाह कर दिया था। उस समय सीज फायर करने का कारण आज तक सरकार ने नहीं बताया। ये हमें पूछने का हक है, एक नागरिक होने के नाते हक है, और हम तो रक्षा मंत्रालय की कमेटी में 10 साल रहे हैं, हमें पूछने का हक है। आज यदि हमारे एयर चीफ मार्शल कहते हैं कि हम 10 साल पीछे हैं, क्यों कह रहे हैं वो? 12 हमारे जो है एयरफोर्स को चाहिए, हमें 5वें स्टेल जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो हमको चाहिए। हमारे लिए राफेल का कोड क्यों नहीं दिया फ्रांस ने आज तक? जब मेड इन इंडिया का कार्यक्रम या ज्वाइंट वेंचर HAL के साथ हो रहा था 5 साल पहले, इसकी राफेल की कीमत 516 करोड़ रुपए थी। आज यदि हम 1500 साढ़े 1500 करोड़ में खरीद रहे हैं और मारक शक्ति उसमें नहीं है, तो हमें सोचना तो पड़ेगा कि हमें धोखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे ना आप? उससे सुप्रीम कोर्ट और टेक्निकल टीम में कोई नहीं है। जो फिर क्यों कह रहे हैं एयरफोर्स के जो वो है हमारे चीफ, वो यही बात वो कह रहे हैं एयरफोर्स के चीफ कि हम 10 साल से कह रहे हैं कि हम वो इंडिजिनस जो हमारा है, कौन छोटा विमान है, उसको हम 40 का ऑर्डर दिया है। मार्च 2024 में डिलीवरी होना थी। मुझे नहीं लगता कि 10 विमान भी हमारे भारत को ये दे पाए हैं। HAL के जो आत्मनिर्भरता थी, उसके जो स्किल था, उसको ही खत्म कर दिया इस सरकार ने। आज मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब, आप लोगों ने आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया, 10 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए आप लोग, और हमारी जो सीज फायर है वो तो इसलिए सवाल उठा रहा है कि सेना हमारी आगे बढ़ रही थी। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी रफाल खरीदने के रास्ते में चीन की दीवार बन के खड़ी हो गई थी, जो कांग्रेस पार्टी जब रफाल खरीदने के आदेश दे दिए गए, तब भारत के प्रधानमंत्री को, निर्वाचित प्रधानमंत्री को गालियां दे रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी को अपने उस गाली गलौज के लिए सुप्रीम कोर्ट पर माफी मांगनी पड़ी, वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारत की सेनाओं को शस्त्र नहीं मिले, भारत की वायुसेना को विमान नहीं मिले। अरे भाई, अगर आपकी चल गई होती तो रफाल भी नहीं होता। आप तो उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आदरणीय माननीय भानुजी, जिस पार्टी में सेना मांग रही थी हमें बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए, आप उपलब्ध नहीं करा सकते थे। सेना के जूतों में घोटाला करते थे, विदेश के रास्ते से मंगाते थे। उस पार्टी के प्रतिनिधि जब सवाल करते हैं तो हंसी आती है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया, चाहे रफाल की मदद से किया, चाहे ब्रह्मोस की मदद से किया, चाहे आकाश की मदद से किया, उसमें बहुत बड़ा तत्व स्वदेशी भी है। सैन्य उपकरणों के मामले में हम, जहां आप कहीं दूर दूर तक आत्मनिर्भर नहीं थे, हम आत्मनिर्भरता की तरफ तेज गति से बढ़े हैं। उसके प्रमाण ये हैं कि आज इजराइल जैसा देश भी, मित्र देश है हमारा, वो भारत से रक्षा उपकरण मांग रहा है। हम केवल आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम तो मित्रों की मदद करने की भी स्थिति में हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पहलगाम और उसके बाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इसको ऑपरेशन मोदी बना दिया। भाई साहब, एक ही वाक्य में, एक ही टिप्पणी में आप 2 तरह की बात कैसे कर सकते हैं आदरणीय भानु जी? आप उसी सांस में ये कह रहे हैं कि
काम तो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, और इंदिरा गांधी इससे भी नहीं रुकी थी, उससे भी नहीं रुकी थी। भाई साहब, इंदिरा गांधी मोर्चे पर लड़ी थी क्या? लड़ी थी भारत की सेनाएं, लड़े थे फील्ड मार्शल, लड़े थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह के नेतृत्व में भारत के लाखों सैनिक, उन्होंने अपना काम किया था। तो फिर ये इंदिरा इंदिरा क्यों चिल्ला रहे हैं आप? आपको इंदिरा जी क्यों याद आ गई इस समय में? और मुझे कह रहे हैं कि राजनीति की बात मत करिए, भाजपा को कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो मुंह पर टेप लगा लें। और आपको कथित आयरन लेडी याद आ रही है। कौन सी आयरन लेडी? जिस आयरन लेडी ने 93,000 दुश्मन के फौजी सरेंडर किए हुए, उनके ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल तक के भी ऑफिसर रहे होंगे, और सैनिक इतने सारे थे, उनको तश्तरी में रखकर बस एक वाक्य, उन्हें वरुण जी इस तरह का अपना एक वो विल पावर दिखाई, तो फिर इंदिरा जी की भी तारीफ करनी होगी ना उस समय के लिए। कह रहा हूं, इंदिरा जी ने अच्छा निर्णय लिया था, पाकिस्तान पर चोट बढ़िया से की थी, लेकिन अगर इंदिरा जी सही नेतृत्व दे रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए इनके पेट में दर्द क्यों होता है? दूसरी बात यह कि अगर इंदिरा जी का निर्णय पाकिस्तान पर प्रहार करने का बढ़िया था, तो इंदिरा जी का यह निर्णय कैसे बढ़िया था साहब कि 93,000 कैदी वापस कर दिए, और 42 भारत के कैदी उनसे वापस नहीं लिए गए उसके बदले में, और वो पाकिस्तान की जेलों में सड़ सड़ कर तिल तिल गल कर मर गए। आप कह रहे हैं आपने फौजों को रोक दिया? भानु जी, आप कह रहे हैं फौजों को आगे बढ़ने से क्यों रोका? अरे बड़ी बड़ाई फौजें 71 में पाक अधिक्रांत कश्मीर वापस क्यों नहीं ले सकती थी? क्यों रोकी थी भाई? जवाब दीजिए। आपके शासन में पंडित नेहरू, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। प्रेम कुमार जी के पास जाने दीजिए मुझे। रुकिए 1 मिनट, रुकिए। प्रेम कुमार जी, अब मुझे ये जानना है कि जो आपने बात कही कि दिल्ली में नेता विषय को बड़ा बना देते हैं टिप्पणियां कर करके, क्या वो रुक जाएंगे? जिस तरह का रीट्वीट, जिस तरह का वो कटाक्ष, और जिस तरीके से फिर वो दोबारा मीडिया का जाना, फिर वो बयान, क्या आपको लगता है ये रुक जाएंगे? क्या यहां पर कांग्रेस में ब्रेक लग जाएगा? आप कांग्रेस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। आप कह रहे हैं ये विषय इतना बड़ा बनना ही नहीं था, पर जो बना रहे हैं इस पूरे मामले को देखते हुए कि मामला बढ़ गया है, टिप्पणियां हो रही हैं, आपको लगता है वो रुकेंगे? देखिए, मेरे कहने का आशय ये था कि कांग्रेस मुख्य इशू पर ज्यादा केंद्रित करती। जो पैनल विदेश गया है उसमें भांति भांति के लोग हैं। आप देखिए, बीजेपी के भी तो नेता हैं उसमें, और अपोजिशन के भी हैं। अपोजिशन में भी डिफरेंट हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही है, और सत्ता पक्ष के भी डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं जो अपना मूल काम छोड़ करके रोज इंदिरा गांधी या राजीव गांधी सबके खिलाफ कुछ न कुछ वहीं से बैठ के लिख रहे हैं। क्या ये भी बात आती है कि यही बात सिखाने के लिए आपको पैनल में भेजा गया? क्या यही करना था तो न जाते, हिंदुस्तान में बैठ करके राजनीति ही कर लेते। लेकिन मुद्दा कांग्रेस क्या करी, अपने ही इशू के इर्द गिर्द अगर न उलझ करके वो दूसरी बातों में उलझती। अब जैसे अब देखिए, यहां बात हो रही कि इंदिरा गांधी को लेकर के चर्चा हो रही। मान लीजिए कि प्रताप भानु जी इंदिरा गांधी की तारीफ करें तो एक बात समझ में आती है, या चौहान साहब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंदिरा गांधी स्वयं अपनी पीठ ठोक रही होती तब निश्चित रूप से वो उतना प्रशंसनीय नहीं होता। आज जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं कि मोदी ऐसा कर देता, मोदी बैठने वाला नहीं है, इस तरह से जो बोल रहे हैं आप, तो सेना का श्रेय नरेंद्र मोदी जी स्वयं ले रहे हैं ना। तो मुद्दा आप यहां बनाइए ना, मुद्दा आप राष्ट्रीय राजनीति में बनाइए। भाई, एक ही सांस में मोदी जी एक बार कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम चौथी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और अगले ही दिन कहते हैं कि हमारे यहाँ छोटी सी चीज लेकर के यहाँ तक भगवान गणेश भी विदेश से छोटी आंख वाला आ रहा है। तो एक सांस में मोदी जी दो बातें कर रहे हैं। वे आत्मनिर्भर बना भारत के विदेशी पर निर्भर हो गया कि छोटी छोटी चीजें भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी बंद हो गई,
पूरा देश का विदेशी बाजार से पट गया। ये जो विरोधाभास है, ये अपने आप में बड़ा विषय होता अगर आप शशि थरूर में ना उलझे होते। हम अपोजिशन को आईना दिखा रहे हैं कि आपका फोकस क्या हो, ये हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये ठीक है। और उसी में बात थी कि वो जो उसका फोकस है वो बार बार क्यों इधर से उधर होता है, और इसमें कुछ लोग मुझे लगता है मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं हर बार, और बड़े से बड़े विषय उधर ही उलझकर रह जाते हैं। एक बार रतनलाल गुप्ता जी के पास चलते हैं, फिर चौहान साहब आपके पास आऊंगा। रतनलाल गुप्ता जी, मुझे बता दें कि आपका सहयोगी जो है, अगर वो ये बात कह रहा है कि खुशहाली आई है हटने से, तो उसे स्वीकार करने में अभी आपको आपत्ति है? अभी आपको लगता है कि नहीं? और आपके नेता तो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा भाई 370 को लेकर। अब तो इतिहास हो गया है, मानना पड़ेगा ना। 370 को एब्रिगेट करने के लिए इनको लगे 70 साल। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 के लिए अदालतों के में लीगली लड़ाई भी लड़ेगी और पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ रही है। अदालत से तो खत्म हो गई लड़ाई भाई। आज भी यही मौकफ है हमारा, आज भी यही मौकफ है। ये जो कह रहे हैं कि साहब मुसीबत हट गई, मैं समझता हूं ऐसे करने से मुसीबतें बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। आज हमारा जो बच्चा यहाँ जम्मू कश्मीर का, जिसको यहाँ नौकरी की गारंटी थी, जम्मू कश्मीर का बच्चे को नौकरी मिलती थी, आज पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे भाग रहा है। हमारी यहाँ जमीन की कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा ये कहने का मकसद है, जो मुसीबतें ये 370 की आप कह रहे हैं, ये विषय नहीं था बाहर बोलने का भाई। जम्मू कश्मीर के जो रिजर्वेशन जिन बच्चों का मिलना चाहिए था वो नहीं मिला 70 साल से, वो भी तो अन्याय था ना। 300 आज हम कर रहे हैं ना, हमने कहा छोड़ा है अपना मौकफ। हम इसके लिए लड़ रहे हैं, अदालत में भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और हम पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। हम कहाँ छोड़ने वाले हैं। मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है आपके लिए, जल्दी से। गुप्ता जी को उत्तर देना है। गुप्ता जी, आप कुछ भी कहें, अनुच्छेद 370 हटे, जम्मू कश्मीर का भारतीय और केरल का भारतीय वो एक समान अधिकार वाले हों, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक वो भारत के संविधान के अंतर्गत मिलने वाले हर अधिकार को पाए, इसके लिए अनुच्छेद 370 जैसे कलंक को 35A को निपटाना मिटाना जरूरी था, इसलिए हटाया गया। और गुप्ता जी, सोच थोड़ी बड़ी कर लीजिए। आप कह रहे हैं कश्मीर के लोगों को गारंटी नौकरी की नहीं मिल रही और पूरा भारत इसमें आ गया। अरे गुप्ता जी, कश्मीर को अगर आप नहीं ऐसा करते तो मैं समझता हूँ इतने तंग नहीं होते, ना मुसीबतें होती, सिरदर्द हो गए। कश्मीर का नागरिक हरियाणा में नौकरी पा सकता है, तो हरियाणा के नागरिक को कहाँ पा सकता है? हरियाणा में तो ऑलरेडी आपने रिजर्वेशन रणवीर के लिए रखी है। ये तो ओपन जम्मू कश्मीर को दिया है आपने। मेरी बात सुनिए, आप सुनिए ना, ये आपका हिमाचल है, आप ले सकते हैं 5 मंदिर वहां जगह। मुझे बताइए ना, आप हिमाचल में जगह ले सकते हैं जम्मू कश्मीर पर? नहीं, आप मुझे बताइए ना, हकीकत से मुंह मत मोड़िए। आपने करने से किया, अब हमारी बात है। माफी चाह रहा हूं सर, मेरे पास समय इतना ही है और इतनी इजाजत दे रहा था, लेकिन राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति हो या ना हो, ये एक पुरानी बहस का विषय तो रहा है, और जब सवाल या जवाब होंगे तो उसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक स्वरूप माना जाता है। लेकिन एक पार्टी में 2 तरह की बातें अगर हो रही हैं तो वो कितनी असहज हैं। कुछ लोग, कुछ जानकार ऐसा बताते हैं, जो अपने आप को जानकार मानते हैं, कि शशि थरूर की राह कांग्रेस में आने वाले समय में और मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे विदेश में गए डेलीगेशन की, और जो डेलीगेशन में गए कांग्रेस के नेता हैं वो जिस तरह की बात रख रहे हैं, उन बातों पर कांग्रेस के अंदर आती टिप्पणियों की। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।